Welcome back to Indian Masterminds. I'm Muskan Kandilwal. In this second part of our exclusive interview with Monica Singh, additional collector of Solapur, we delve into a different facet of her inspiring personality. Her profound connection with poetry, particularly ghazals, a published author of 3 books consisting of collections of her ghazals, Seher ke Khwab, Lums, and Baat Baki Hai. Monica Singh shares her journey as a poet, how her role as a civil servant influences her writing, and why she chose to master the Urdu script. Join us as she recites some of her poignant verses and reveals the philosophy behind her captivating poetry. So, you have authored Seher ke Khwab and Lums, 2 ghazal books. What drew you Three to? ghazal book actually. Okay, One is Baat Baki Hai. okay. So, what drew you towards poetry, particularly ghazals? Uh, I used to write since my school days actually. Okay. So yes. So I was only little kind of shy person to recite. So lately I started, like reciting on public platform. Okay. Otherwise, I was poet since beginning. But when I was working, I found definitely it's a kind of stress buster also. Hmm. Uh, it's like poet is a silent spectator, no? Right. Can what we just cannot express otherwise, we can express it through poetry. Right. So it's So, kind what of mirror of society. Yeah, What themes do you explore in your poetry? everything. My most though mostly it's around love, but it's God also, Okay. social reformers also, women. Then talk about society in general. Right, right. So It includes all. does your work as a civil servant influence your writing? Do you find stories and emotion from real life governance experience reflected in your Yeah, poetry? yes, yes. But then there are again I have to balance because I'm working, so uh, I have to more balance my poetry because I have more responsibility. Right. Uh, yeah, Okay. So just I'll I'm just not poet. Yeah, it's Mhm. like two sides. I'm poet and A civil post I'm servant. civil servant. Right. Right. So I'll just read a few of your lines before asking another question. हो गया इमरोज चुप है खौफ मुस्तकबिल बहुत देखे हैं अहले वतन की बेबसी पागल हवा उर्दू जबान पर इतना कमांड कैसे आया इनफैक्ट क्या अपने एक शेर में आपने ये भी कहा है कि क्या मराठी और उर्दू जिस्त के मजीन में गर एक निशान है। पानी है तो दूजी हवा मेरे लिए तो जी, इससे ये तो साफ है कि उर्दू से आपका गहरा रिश्ता तो है तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। मुझे उर्दू से क्योंकि उर्दू जो है उर्दू और हिंदी ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई जुबानें हैं। हाँ। यस। अ, क्योंकि उर्दू का आप अगर जन्म देखेंगे तो वो वहीं से जो दिल्ली से आया उसके पहले का पीरियड है जब जब मुस्लिम इन्वेजन हुए और मुस्लिम्स वेर ऑन दिल्ली तक। तो बहुत सारे उनके जो सिपाही थे वो टर्किश थे, वो अरेबिक थे, और ट्रू। वो ये सब इनके लिए एक कॉमन जुबान नहीं थी। हम्म। तो जो हिंदी बोली है, ब्रिज भाषा है, और जुबानें दी उनकी सब मिक्स की हुई जुबान, और उसको उन्होंने फारसी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट। यस। इसलिए वो जो जुबान है वो हमारी सोच की जुबान है, अपनी जुबान है। तो सिर्फ उसकी स्क्रिप्ट अलग है, ये आप कह सकते हैं। राइट। तो वो हमारी सोच का हिस्सा है, ट्रेडिशनली सोच का हिस्सा है। तो हम्म। मैं जब पहले जब कविताएं लिखती थी, उसके बाद गजल की तरफ मैं माइल हुई। हम्म। पर जब कविताएं लिखती थी तब मुझे ये बात का एहसास होता था कि मुझे उर्दू तो आती है पर मैं उसकी स्क्रिप्ट मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो मुझे स्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। ओके। फिर 2013 की बात है जब मैं एसडीएम थी,
कोल्हापुर में। तो हम्म। तब मैंने फिर बीए किया उर्दू में ओ। अपने और उसके बाद क्योंकि मुझे एमए करना था, तो एमए के लिए तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल सकता था क्योंकि हम्म। स्क्रिप्ट ही अलग थी। और उसके बाद फिर मैंने एमए किया उर्दू में। तो वाह। ये है कि किसी भी जुबान को जानने के लिए उसकी स्क्रिप्ट जानना सच में जरूरी है। राइट। क्योंकि उनके अल्फाबेट्स, उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो एक ही शब्द के दो अलग मीनिंग होते हैं, तो इसलिए जैसे वो कि। स्क्रिप्ट जानना जरूरी है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, आप उर्दू का जो वर्ड है जलील हम्म। और जलील, यस। अभी हमारे लिए तो ज एक ही अल्फाबेट है, पर उर्दू ज के नीचे नीचे रेफ। जब नुक्ता आ गया तो नुक्ता। वो यस। ज हो गया। हम्म। हाँ, और वो तो जलील यानी किसी की तौहीन करना, किसी को, हाँ। है ना, किसी को अपमान, किसी डिसरेस्पेक्ट का करना। राइट। हम्म। डिसरिस्पेक्ट करना। हम्म। और जलील यानी कि सुंदर। यस। तो आप समझ लीजिए कि एक शब्द के दो अलग अलग मतलब वहीं की वहीं निकल आते हैं। हम्म। और लोगों का ऐसा होता है कि वो ज और ज ये एक जैसा ही, अगर अगर आप स्क्रिप्ट नहीं जानते हो, उसको उसको कहाँ इस्तेमाल करना ये नहीं जानते हो, तो वो आप इधर से उधर ऐसे ही कहीं भी उसका यूज किया यूज जा कर सकता लेते है। हैं। हाँ, तो वो फिर वो गलत हो जाता है। राइट। राइट। बहुत बार आपने जावेद अख्तर साहब का भी इंटरव्यू अगर पढ़ा सुना होगा, तो कहते हैं कि पता नहीं क्यों कुछ लोग मेरे नाम को जावेद क्यों कर देते हैं जबकि वो जावेद है। क्योंकि ये जो फर्क है, ये जो स्क्रिप्ट को जानता है वही समझ सकता है, लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं दोनों को। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो राइट। उससे उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने स्क्रिप्ट भी सीखी कि मुझे ओके। स्क्रिप्ट आनी हम्म। चाहिए। वाओ, दिस इज फिर सो नाइस। उसके बाद फिर मैं गजल की तरफ माइल हुई। जो आपने शेर कहा वो मेरी जी। एक गजल से है। हम्म। कि तो लाइफ और सोसाइटी पर आप अपनी गजलों के जरिए जो कमेंट्री करती हैं, उसमें इतने ओरिजिनल और यूनिक पर्सपेक्टिव्स कैसे लाती हैं। अगेन आई विल रीड सम लाइंस। ये 4 लाइनें कितना प्रोफाउंड है, लेकिन रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देती है। जैसे, इश्क का हासिल जमाना पूछे है, राख में चिंगारियां हैं और क्या, और क्या। क्यों सभी में ढूंढते हो खूबियां, खूबसूरत खूबियाँ। खामियां हैं और क्या। और आखिर की जी। लाइन की, अब तो उसके भी ना अपने ही रहे, उम्र भर खामोशियां हैं और क्या, लब पे पाबंदी है आंखों पे नहीं, अनकही आजादियां हैं और क्या। कैसे आप इतनी सहजता से दो ही शेरों में इंसानी रिश्तों, समाजी मसलों और सियासत तीनों पर बात कर लेती हैं। आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है जब आप लिखती हैं तो। हाँ, ये आपको बताऊं, कोई शेर सूझता है, जी। एक शेर सूझता है, और फिर मतलब ये जो है ना मेडिटेशन वाली एक स्थिति है कि जब आप किसी गजल की गहराई में पहुंच जाते हो, एक एक शेर आपके ऊपर छाया हुआ है, तो फिर उसके साथ साथ वो गजल बनती जाती है। हम्म। मतलब आप सिर्फ एक सोचते हो, और वो चीज फिर आगे, यही है कि ये जो आपकी जहन में है वो फिर उस पे और गजल की खासियत यह है कि गजल दो ही मिसरों में मुकम्मल हो जाती हाँ। है, एक शेर में एक शेर काफी है। राइट। और ऐसे और अलग अलग शेर, अलग अलग भावनाएं एक गजल में हो सकती हैं, जैसे हम्म। इसमें इस गजल में भी है। कोई इश्क का शेर है, कोई समाजी शेर है, जी। कोई कोई सियासत पे हो सकता है। तो वो वही है कि वो एक मेडिटेशन वाली स्थिति है। हम्म। जब आपको सूझा, आप तभी अगर लिख दोगे तो वो मुकम्मल हो जाएगी। नहीं तो पीछे कोई शेर अगर छूट गया तो छूट हम्म। ही जाता है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, एक वो जो सैर के ख्वाब में किताब की शुरुआत में एक शेर है कि लिखा जो तेरे साथ था जी। कमाल था, यकीन कर, लिखा न तेरे बाद क्यों, सवाल था, यकीन कर। अब ये शेर बन गया, पर हम्म। उसके बाद गजल नहीं बन पाई, क्योंकि अगर वो जब शेर लिखा तब उतना आपके पास वक्त है तो आप पूरी गजल लिख दोगे वही ओके। 5-10 मिनटों में। पर वो क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी गजल जो है आर्टिफिशियली नहीं लिखी जाती कि मुझे इसको कंप्लीट करना है।
वो प्रोसेस में आप अगर डूबे हो हम्म। तभी लिख सकते हो। तो वो वही है कि ये कुदरत मतलब है जो कुछ अंदर जहन में चलता रहता है, बस उसी का केमिकल लोचा है आपको। तो अभी तक आपने जितनी गजलें लिखी हैं उसमें से सबसे आपके क्लोज टू हार्ट कौन सी है, अगर आप कुछ लाइंस बोल सके? मुझे तो अब जैसे आपने कहा, मुझे तो मेरी अपनी सारी ही गजलें पसंद आती हैं, स्पेशली जो लोगों को पसंद आती हैं। मुझे लगता है शायद मैं उन तक पहुंच पा रही हूँ। ओके। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत मतलब ये वो चीज है जो आप अगर कोई चीज उन तक पहुंचा रहे हो, उनको ये उनकी अपनी लग रही है, तो फिर वो लगता हम्म। है कि हाँ मैं मेरी गजल लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही हूँ। राइट। एक गजल है जिसको इंस्टाग्राम पे 5.1 मिलियन व्यूज हैं। ओके। मैं जितनी बार भी पोस्ट करती हूँ उसको 2-2.5 मिलियन व्यूज हो जाते हैं वाह। उसके। तो पता नहीं वो मतलब शायद मैं लोगों तक कनेक्ट कर पा रही हैं। पहुंच रही हूँ उसमें। राइट। मतलब वो गजल कुछ ऐसी है कि वो अगर अच्छा लगे, उसका इरादा सोच मत, जी ले रिश्ता और रिश्ते का नतीजा सोच मत। वाह। और शेर सुने कि एक दिन तो डूबना ही है यहाँ हर एक को, डूबने के खौफ से बचना संभलना सोच मत। और जाके कह दे बेखुदी में जो भी कहना है उसे, फिर अगर कमजोर हो रिश्ते का धागा सोच मत। वाह। और शर्त तूने जब रखी है कोई गम को ले खरीद, शर्त तूने जब रखी है कोई गम को ले खरीद, कौन दावेदार गम का होगा यारा सोच मत। वो अगर अच्छा लगे उसका इरादा सोच मत, जी ले रिश्ता और रिश्ते का नतीजा सोच मत। वाह। वेरी वेरी नाइस। सो ये आप। जो आपने अभी रिसाइट की वो भी काफी लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि ये जो हाँ। एक बहुत ही तरल सा एहसास है कि क्यों सभी में ढूंढते हो खूबियां, राइट। खूबसूरत हम यहाँ हैं और और क्या। क्या। और वो जो पहला उससे पहले जो है कि वो इश्क का हासिल जमाना पूछे है, हम्म। इसमें ये मैंने पॉजिटिव इसको लाइन इसमें मेरे दूसरी लाइन दो अलग से भी है कि इश्क का हासिल जमाना पूछे है, राख में चिंगारियां हैं और क्या, यानी यहाँ कोई होप है। राइट। या दूसरा ये कि इश्क का हासिल जमाना पूछे है, चाहतों में दूरियां हैं और क्या। और क्या। इसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। बोथ वे आई रिसाइट व्हेन आई फाइंड लाइक which kind of vibes I'm getting from crowd। तो ऐसे बस बताया। ओके। तो आपका लिटरेरी इंस्पिरेशन क्या है? एनी पोएट, ऑथर जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर दे जब आप लिखती है तो? हाँ, साहिर साहब से मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ। मतलब साहिर साहब को हम मैं मेरे भाई वो भी बहुत पोएट्री पढ़ते हैं, तो हम लोग बहुत बार रात रात भर साहिर की जो फिल्मी नॉन फिल्मी दोनों ओके। गीत जो हैं वो रिसाइट करते। गालिब हम्म। फैज अहमद फैज साहब, अ, इनकी शायरी बहुत पसंद है। बच्चन साहब को बहुत पढ़ते हैं। हम्म। किसी की शायरी बहुत अगर आप ही रिसाइट करना चाहें? कल ही हम फैज साहब को सुन रहे थे, मुझे जुबानी बहुत याद नहीं रहता। साहिर साहब की ताजमहल भी बहुत पसंद आती, तो उन्होंने ताजमहल को जैसे उसमें उन्होंने है कि मेरी मिलाकर मुझसे बज़्म शाह गरीबों का गुजर क्या मानी, शहर का सहारा लेकर गरीबों की का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और आकर मुझे। इसमें बहुत सारे जरूर पढ़े आप। हम्म। वो एक शायर किसी चीज को
एक अलग नजरिए से देख सकता है। राइट। कोई अगर अगर गरीब है तो वो उसकी महबूब के लिए क्या ताज खड़ा कर सकेगा, उस तरीके से। Okay, so thank you so much, ma'am, for giving your time. It has really been a great conversation. चाहे आपकी UPSC जर्नी रही हो, your work and this poet वाला पूरा वीडियो। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करने में। Muskan, I also loved it. I enjoyed it. It was actually a revival of my, like whole journey. I was thinking, like, especially this poetry one, I loved it. यस, थैंक यू Yeah, सो मच मैम, pleasure बहुत मजा meeting you. आया। Thank you.